Hello dear students, today I am going to teach you about the selection of equipments used for injections. So whatever equipments that we use for injections, today I am going to teach you about that. And you know that there are certain equipments that specifically are used for injections. You have heard about needles, you have heard about syringes. So I will be teaching you about the needles and the syringes that you use for giving injections. So now you have heard what are needles, you have seen them with your own eyes, and you must have seen with your own hands, right? So let's see what are those things, what all types of syringes are there, because there are several types of injections. So we use different sizes or different types of syringes because all different syringes have different purposes. So basically the most important two types of syringes are disposable ones and the reusable ones. Okay, so disposable ones are to be used for just once and then we have to discard it. They cannot be used any further. Okay, but the second one is reusable. So reusable means they can be used again. So for these reusable syringes, we need to make them sterilized every time when we are going to use it for injection administration. So these are the things that we have. Two types of syringes are there, disposable and the reusable. Nowadays only the disposable ones are used because there are more chances of acquiring blood related infections such as the serum hepatitis. So in order to prevent those kind of infections because of reusing of the syringes and needles, we don't use it anymore now. We are only using disposable ones. Okay, and after one use we discard it. And if you have any doubt regarding whether this particular syringe or needle has been used or not, it is open, it is not packed, and it is just open, and you are doubtful that whether it is already used or not, so you discard it, you don't use it, and you make sure that you use always a packed one. You open it with your own hands and then you use it. Okay, so this is why we are doing this, so that we are sure that we have done the perfect procedure administration. We have been using the aseptic techniques. So to make sure of that, we need to practice such a way. Now the commonly used sizes of the syringes are different. You must have seen in the ward there are different sizes of syringes. You must have seen one red one that is very thin. Okay, that you might have seen that that kind of syringe is used to give the test dose or even the insulin injection. Those, for that purposes we use that thin one. So that is the 1 ml syringe. Okay, and it has different markings depending on the purpose of that particular syringe. Now those syringes, that is the 1 ml syringe, that are one is tuberculin syringe and the other one and the other one we have the insulin syringe. Okay, so insulin syringe is specifically used for giving the insulin doses. Okay, and it has different types of markings according to the amount of depending on the units we have. So there are unit 40 syringe also, and then we have unit 80. So this U40 type of insulin syringe has 40 divisions in the 1 ml. 1 ml के 40 डिविजन्स किए हैं, उसकी अलग वैल्यू होगी. अगर उसी में 80 डिविजन्स होंगे, so that means it has a different units. Okay, so over here if that is 40 units, that is the unit 40 type of insulin syringe, so it has 40 divisions in it. Okay, and there is another one syringe, insulin syringe only 80 unit वाला. ठीक है, so उसमें 40 की जगह 80 मार्किंग्स होंगे. ओके, सो मतलब ये कि हम 80 यूनिट में और भी छोटा डोज हम उसमें मेजर कर सकते हैं. इज़न्ट इट? लाइक आपके पास अगर 1 सेंटीमीटर्स का गैप में अगर डिफरेंस हो या 0.5 में हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका डोज को मेजर कर सकते हो. उसी तरह से ये 40 और 80 का डिवीजन है. 40 अगर है तो उसमें थोड़े बड़े गैप होंगे, राइट. 80 डिविजन्स में बहुत छोटे छोटे गैप्स होंगे. ओके, सो दैट इज अबाउट द इंसुलिन सिरिंज. दूसरा है ट्यूबरकुलिन सिरिंज. सो ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो है वो दो सिरिंजेस आर स्पेशली फॉर द टेस्ट डोज. और जैसे ट्यूबरकुलिन सिरिंज नाम से पता चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम बेसिकली यूज करें. सो ये जो इंजेक्शन है ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो है वो हम यूज करते हैं स्पेशली उस टेस्ट डोज के लिए जो हम
ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक टेस्ट डोज देते हैं ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने के लिए, सो दैट इज द मैनटॉक्स टेस्ट। ठीक है, तो वो टेस्ट को डायग्नोज करने के लिए वी यूज दैट पर्टिकुलर सिरिंज, जिसके अंदर हम पीपीडी लेंगे, जो हमारा प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है वो हम उस सिरिंज के अंदर मेजर करके लेते हैं। अब उसको बहुत ही छोटी अमाउंट में देना है। ठीक है, सो उसको मेजर करने के लिए हमें बहुत ही छोटे छोटे मार्किंग्स चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजर कर सकें। सो यहाँ पर ये जो आपके पास ये सिरिंज होती है ट्यूबरकुलिन सिरिंज, उसमें आपके पास 100 मार्किंग्स होंगी। ठीक है, मतलब 1 ml की वो सिरिंज है और उसके अंदर 100 मार्किंग्स हैं, तो उसके बेसिस पर आप देख सकते हो कि आपको कितनी डिवीजन पे देना है, 1 2 3 4, उसके बेसिस पर 100 है, 100 डिविजन है। इंसुलिन में कितने थे, 40 है, 80 है। यहाँ पर जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है उसमें 100 डिविजन है। ओके, सो ये हमारे पास है इंसुलिन सिरिंज और ट्यूबरकुलिन सिरिंज। और दूसरी जो कॉमनली आपके पास ये तो जो सिरिंजेस हैं इंसुलिन एंड ट्यूबरकुलिन, दीज आर स्पेशल सिरिंजेस, दे हैव अ स्पेशल पर्पस। इंसुलिन ओनली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स हु आर सपोज्ड टू बी गिवन इंसुलिन, ट्यूबरकुलिन सिरिंज फॉर द टेस्ट डोज, ओके, स्पेशली फॉर डायग्नोसिंग द ट्यूबरकुलोसिस। देन दूसरी जो सिरिंजेस हैं उसमें आपके पास कॉमनली क्या होता है, एक आपके पास होगा मतलब अलग अलग साइजेस की होंगी सिरिंजेस, 2 ml की, 3 ml की, 5 ml की, देन 10 ml, 20 ml, 50 ml। ठीक है, ये जो है ये कॉमन है, 30 ml की भी होती है बट बहुत कॉमनली नहीं देखते। तो 2, 3, 5, 10, 20 एंड 50 ये कॉमनली हमें देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा 10 ml तक हम यूज करते हैं, 2, 3, 5 और 10 की तो बहुत कॉमनली मिलेगी, 20 भी देख सकते हो और 50 भी देख सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन यूज सिरिंजेस, दो कॉमन साइजेस, एंड ये जो सिरिंजेस हैं इनके कुछ पार्ट्स हैं। ओके, सो लेट्स सी कि सिरिंजेस किस तरह की दिखती है। ओके, so here you can see this is a syringe, right? These are the parts of syringes you can see over here. This syringe has these 2 parts, okay? This one is the plunger. Plunger means ये जो plunger है ये इसको आप जब आप पुल करते हो तो ये एरिया आपके पास ओपन हो जाता है जिसमें आप मेडिसिन यहाँ से ले सकते हो। ओके, ये जो है ये है बैरल जिसके अंदर आपकी मेडिसिन आएगी। ओके, इसके ऊपर बहुत सारी मार्किंग्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज। ये देखो यहाँ पर 10 ml लिखा है, तो 10 ml मतलब कि 10 ml वाली सिरिंज है, यहाँ पर इस तरह से मार्किंग है। दूसरी सिरिंज अगर आपके पास 2 ml है तो 2 ml तक की यहाँ पर आपके पास मार्किंग होगी, उसमें और छोटे छोटे डिविजन्स होंगे, उसका साइज भी अलग होगा, छोटी बड़ी इस तरह की होंगी। सो 2, 5, 10, 20, 50 depending on the size of the syringe we have these syringes and their markings respectively। ठीक है, हर एक सिरिंज में जो जिस साइज की वो सिरिंज है उसके बाद भी थोड़ा सा स्पेस होता है जिससे कि आपके पास वो पूरी फुल ना हो जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप ले सको। ओके, एयर ले सको या जो भी आपके पास, ताकि वो मेडिसिन जो भी है आपके पास वो वेस्ट ना जाए, कुछ भी ऐसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर होता है। तो अगर 2 ml है तो उसके पास भी थोड़ा सा 1-2 मार्किंग की स्पेस होती है, लाइक दैट। सो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बैरल। नाउ ये पार्ट जो है ये है टिप ऑफ द सिरिंज जो है ये, इसको हम नीडल में लगाते हैं। ओके, सो नीडल में वो अच्छे से फिट हो जाता है एंड देन उसको अच्छे से फिट करने के बाद हम कहीं पे इंजेक्ट कर सकते हैं या आपको मेडिसिन लेनी है तो आप उसके थ्रू ले सकते हो। सो ये पार्ट जो है ये नीडल के अंदर फिट हो जाता है। ओके, सो टिप, बैरल एंड प्लंगर, गॉट इट? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर पार्ट्स ऑफ द नीडल। अब देखते हैं नीडल के क्या क्या पार्ट्स हैं। सो हियर वी हैव अ नीडल अलोंग विद द सिरिंज। ठीक है, ये पार्ट जो है ये है हमारी सिरिंज, नीडल क्या है ये वाला पार्ट। ओके, नाउ ये जो है यहाँ पर ये पार्ट जो है ये सिरिंज का है और ये फिट किया हुआ है, पूरा नीडल से फिटेड है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द टिप ऑफ द सिरिंज इज फिट इनटू द नीडल। अब जिस पार्ट से ये टिप फिट हो रही है इस पार्ट को हम कहते हैं हब। इस पार्ट को आप अपने फिंगर और थंब से होल्ड करते हो। ठीक है, यहाँ पर होल्ड करते हो और इधर से ये जो आपके पास सिरिंज है इसको फिट करते हो हब के अंदर। दूसरा पार्ट क्या है? शाफ्ट। तो ये जो लंबा सा पार्ट है जो कि नीडल का पार्ट होता है,
नीडल है ये पूरी, ये जो लंबा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट. ओके, ये है शाफ्ट. और दिस वन ओवर हियर, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा बट ये टिप है. टिप नहीं, दिस इज कॉल्ड अ बेवल. ओके, सो बेवल ऑफ द नीडल लुक्स लाइक दिस. कुछ कुछ ऐसे करके शेप की होगी और फिर ऐसे नीडल होगा. ओके, सो लाइक दिस इट इज. और हियर आई विल ड्रॉ फॉर यू. ओके, सो ये जो कट है ये स्लैंट कट होता है. एक स्लैंटिंग सा कट होगा, टेढ़ा कट होगा नीडल में. और आप साइड से देखोगे तो वो कुछ ऐसे दिखता है. ओके, सो इस तरह की ये नीडल होगी. ये शाफ्ट हो गया, ये आपका बेवल है. ये आपके पास शाफ्ट है. और ये जो पार्ट जो आपके पास सिरिंज में जाकर के अटकेगा, ये है हमारा हब. अब यहीं पर आप अपनी टिप ऑफ फिंगर और थंब से इसको होल्ड करते हो. और आपके पास दूसरा पार्ट, अब सिरिंज के पार्ट है, ये है आपकी टिप जो इसमें जाकर के फिट हो जाएगी. ओके, देन यू हैव बैरल, जहां पर ये अलग अलग मार्किंग्स होते हैं. ओके, डिपेंडिंग ऑन द साइज मार्किंग्स हैं. ओके, देन यहां पर ये ऐसे करके यहां पर आप अपनी फिंगर्स को रख करके प्रेशर लगा सकते हो, जिससे कि आप प्लंगर को पुल करोगे. या इंजेक्शन देने के टाइम में आप यहां पर अपने फिंगर्स को रेस्ट करते हो. ठीक है, तो ये उसके लिए है. उसके बाद यहां पर आपके पास ये तो ये यहां पर एंड हो गया बैरल. एक पार्ट है जो कि अंदर तक जा रहा होता है. ओके, और यहां पर इसके रबर होती है जिससे कि यहां पर वैक्यूम बना रहे. ओके, कोई भी चीज मेडिसिन यहां से लीक आउट ना करे, यहां पर इसलिए फिटिंग रबर होती है. तो ये जो है हमारा क्या है, प्लंगर. और यहां पर भी आपके पास ये स्पेस है जिससे कि आप इसको पुल कर सको. ओके, सो दिस इज द प्लंगर. यहाँ पर रबर लगी होती है और ये एरिया आप होल्ड करने के लिए आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप प्लंगर को पुल कर सकते हो. नाउ व्हेन आई हैव दैट नीडल विद मी इन माय ओन हैंड, देन आई कैन शो इट टू यू बेटर कि किस तरह से इसको हैंडल करना है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज पार्ट्स ऑफ द सिरिंज. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ सिरिंज. जब भी आप ये नीडल और या जो सिरिंज आप यूज करने के लिए जा रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब मेडिसिन विड्रॉ करने जा रहे हो, तो जब आप पैकेट से निकालोगे सिरिंज को, तो वहां पर एक थोड़ा सा स्पेस आपको दिखेगा, जिससे कि आपको जो जिस तरह से वो आपको पैकेट से निकालोगे तब आपको वैसे दिखेगा. आपको उसको पुल एंड पुश करके आपको उसको इजी करना है कि हाँ वो अच्छे से पुल एंड पुश हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, तब आप मेडिसिन इजीली विड्रॉ कर सकते हो. ओके, अदरवाइज वो बहुत टाइट लगता है. ओके, दैट इज वन थिंग. देन नीडल आपका जो है वो शार्प होना चाहिए, एकदम शाइनी होना चाहिए और बहुत क्लियर होना चाहिए. तो आप देख सकते हो अच्छे से अपने बेवल और नीडल को कि वहां उसमें कोई रफनेस ना हो, किसी तरह का कुछ भी उठा ना हो, कुछ रफ ना हो. ओके, इट शुड बी वेरी शार्प सो दैट जब आप इंजेक्ट करते हो पेशेंट के बॉडी में उस नीडल को यूज करके, सो इट शुड नॉट बी मच पेनफुल. जितना वो स्मूथ होगा उतना कम पेन होगा पेशेंट को. Okay, so this is there. So the needle should be very sharp and it should be smooth. You have to make sure of that. And अगर आप सोच रहे हो कि आपने अभी इस नीडल से मेडिसिन विड्रॉ की है, मेडिसिन ही तो विड्रॉ की है, मेडिसिन तो पेशेंट के अंदर देनी है, बट यू कैन नॉट यूज दैट नीडल टू इंजेक्ट द मेडिकेशन इनटू द पेशेंट्स बॉडी बिकॉज दैट इज ऑलरेडी हैज बीन यूज्ड फॉर विड्रॉइंग द मेडिसिन. ओके, इट मे कंटेन द ग्लास पीसेस, okay, of the ampule, or it may contain some rubber material also of the vial. And also when we have already used the that needle to puncture into the vial cap, okay, it was made of rubber, so it was already being punctured into the rubber, and then it is already, you cannot use that needle again.
Okay, so you have to make sure that whenever you are using an injection to be given for the patient, so you cannot use the same needle for medicine withdrawal and for the medicine administration into the patient's body. You have to change the needle always. Now there are certain criteria for selection of the syringes and needles. So let's see what are those criteria. So now here the main factors that are to be considered while selecting the syringes and the needles. Here you have to see that which route are you going to use. Now for example, if you are going to use the intradermal site, okay, or intradermal route, so you can use a very small size of the needle. Another thing I want to tell you that the needle sizes are also there. Okay, so needle sizes जो हैं वो इस तरह से, जैसे we have the sizes from 14 to 27. ठीक है, 14 से लेकर 27 के साइजेस के आपके पास नीडल्स हैं, अलग अलग साइजेस की. ठीक है, सो जितना ज्यादा बड़ा नंबर होता है उतनी पतली नीडल होती है. ओके, लार्जर द नंबर थिनर द नीडल, स्मॉलर द नंबर थिकर द नीडल, उतनी ही ज्यादा मोटी नीडल होगी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 22 नंबर की नीडल है और आपके पास 18 नंबर की नीडल है, ठीक है, तो 18 नंबर की नीडल आपके पास मोटी नीडल है, 22 नंबर जो है वो उससे पतला है. ओके, तो ये है हमारे साइज का वेरिएशन. 14 से लेकर 27 तक के साइजेस की हमारे पास नीडल्स अवेलेबल होती हैं. नाउ डिपेंडिंग ऑन द रूट आपके पास वो नीडल आप यूज करोगे. इंट्राडर्मल के लिए आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर ही रहेगा, है ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, छोटी नीडल को यूज कर सकते हो. हाँ, और बहुत ही पतली नीडल आप यूज कर सकते हो. एंड देन अगर आपको आईएम देना है, हाँ, देन उसके बेसिस पर आपको थोड़ी लंबी नीडल चाहिए होगी, जिससे कि नीडल जो है मेडिसिन को मसल्स तक इंजेक्ट कर सके, वो सिर्फ स्किन में ना रह जाए. एंड देन सेकेंड थिंग क्या है, बॉडी साइज, सॉरी, विस्कोसिटी ऑफ द मेडिकेशन. नाउ जो मेडिसिन है वो किस तरह की है, अगर क्या वो थिन है, कितनी या कितनी थिक है, उसके बेसिस पर आपको उसको डाइल्यूट करने की जरूरत है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो यू विल सी फॉर द यू विल सेलेक्ट द सिरिंज एंड द नीडल. सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है अमाउंट ऑफ द मेडिकेशन. अब आपको कितना मेडिसिन चाहिए उस विड्रॉ करने के लिए, या पेशेंट को कितना मेडिसिन देना है, उसके बेसिस पर भी आप अपना सिरिंज और नीडल को सिलेक्ट करोगे. नाउ अगर आपको 5 ml मेडिसिन देना है, तो आप एग्जैक्टली अगर 5 ml की सिरिंज लोगे वो आपके लिए यूजफुल हो सकती है. ठीक है, अगर आपको 6 लेना है तो फिर आप क्या ये करोगे, 5 ही यूज कर लेते हैं, 2 बार में कर लेंगे. नो, यू हैव टू गो फॉर 10 ml सिरिंज. ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू सेलेक्ट अ सिरिंज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन. नेक्स्ट है बॉडी साइज एंड अमाउंट ऑफ फैट. नाउ बॉडी साइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर पेशेंट बहुत ज्यादा पतला है सो आप बहुत बड़ी नीडल नहीं यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर आपके पास पेशेंट ओबेज है या बहुत ज्यादा मसल्स वाले, बहुत ज्यादा हेल्दी है, ठीक है, सो जो ओबेज पेशेंट्स होंगे उनके पास फैट ज्यादा होगा, राइट. सो एंड यू हैव सपोज टू गिव द इंजेक्शन इन द मसल्स. फॉर एग्जाम्पल मसल्स में इंजेक्शन देना है, आपके पास पेशेंट ओबेस है तो उसके पास फैट ज्यादा है, तो आपको लंबी नीडल चाहिए होगी, सो दैट यू कैन पास थ्रू द सबक्यूटेनियस फैट एंड रीच द मसल्स फॉर द मेडिकेशन. Okay, so depending on the body size and the amount of fat, we have to select the needle. So there are these 4 things that we have to consider while selecting the syringe and the needle. First one, the route ordered, then we have the viscosity, and then we have the amount of medication, and then the body size. Okay, so what all things are there? Route, viscosity, and the amount of medication and the body size. So these are the 4 factors that we have to consider. Now when we are, this is about the selection of the needles and the syringes. Now while selecting the needles, then we have to see for the accurate therapy. अब किस तरह की थेरेपी देनी है वो सब भी देखना है. ओके, एंड उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए वो पर्टिकुलर नीडल यूजफुल है या नहीं है, वी हैव टू सी दैट, देन ओनली वी सेलेक्ट द नीडल. नाउ वी हैव टू ऑल्सो सी दैट द बेवल दैट आई टोल्ड यू, बेवल कैसा होता है, वो स्लैंटेड होता है. ओके, तो ऐसे करके होगा, टेढ़ा. ओके, सो उसको देखना है कि वो शार्प है या नहीं है, रफनेस तो नहीं है उसके अंदर. देन नीडल साइज जो है वो छोटे साइज का होना चाहिए, मतलब कम से कम साइज लेना है. वाई, जिससे कि आप कम से कम टिश्यू को डैमेज करो. तो मेक श्योर दैट यू हैव द मिनिमम साइज ऑफ द नीडल so that you damage the less amount of the tissue of the patient. Now next है length, needle length appropriate to the site and the person.
नाउ साइड के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग, मतलब पेशेंट का बॉडी साइज आ गया यहाँ पे पर्सन में, और साइड के अकॉर्डिंग मतलब अगर IM देना है तो ज्यादा लंबी नीडल चाहिए, इंट्राडर्मल देना है तो छोटी नीडल चलेगी. सो नीडल लेंथ जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. नीडल शुड फिट टाइटली टू द सिरिंज. नाउ आई टोल्ड यू दैट जो टिप होती है उसको ये बेवल टिप को, जो सिरिंज की टिप है उसको नीडल के हब में अच्छे से फिट होना होता है. ओके, सो नीडल के हब में अगर अच्छे से फिट होना है उसके लिए उसको परफेक्ट साइज का होना चाहिए. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि वो नीडल की टिप जो है वो अच्छी तरह से फिट हो. अगर आपको हल्की से भी लूज लगती है यू कैन नॉट गो फॉर दैट, इट कैन बी डेंजरस. ठीक है, सो मेडिसिन लीक आउट कर सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि वो परफेक्ट साइज का हो. ओके, सो ये चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है जब आप सिरिंज और नीडल को सेलेक्ट कर रहे हो. अभी आई विल सेंड यू दिस टेबल. देयर इज अ टेबल इन योर टेक्स्ट बुक जिसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया है. ठीक है, तो इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है. उसके अकॉर्डिंग कौन सा साइज का सिरिंज आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा, वो साइज ऑफ सिरिंज यहाँ पर दिया है. और साइज ऑफ नीडल भी है जिस उस साइड के या उस रूट के अकॉर्डिंग किस साइज का नीडल आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो ये टेबल मैं आपको सेंड करूंगी. यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन सी. देन नेक्स्ट आपके पास है नीडललेस सिस्टम. सो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली यूज द नीडल्स नाउ बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है. यू पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है नीडल्स को टॉलरेट करना. सो वी हैव कम अप इन अ स्टेज जहां पर हम नीडल के बिना भी इंजेक्शन या मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं. सो ये जो सिस्टम है दिस इज समथिंग लाइक आपके पास कुछ प्रेशर यूज करके आप मेडिसिन को स्किन के आर पार क्रॉस करा सकते हो. ओके, विदाउट द नीडल, सो यू डोंट हैव टू कॉज एनी पेन टू द पेशेंट. Okay, so over here these are the this also prevent from needle stick injuries. ठीक है, needle stick injury मतलब needle जैसे हाथ में लग जाए कहीं तो उससे इंजरी हो जाती है. That is very common when you are using when you are handling the needles. Definitely it can happen. Okay, so अगर हम needleless system use कर रहे हैं जिसमें needles को use ही नहीं करना तो ये चांस भी नहीं रहेगा. देन वी हैव प्रीफिल्ड कार्ट्रिजेस. प्रीफिल्ड कार्ट्रिजेस जो है इससे आप एक डोज मेडिसिन का दे सकते हो. कॉमन आपके पास प्रीफिल्ड कार्ट्रिजेस के एग्जांपल्स हैं ट्यूबेक्स और कार्प्यूजेट. ट्यूबेक्स और कार्प्यूजेट. सो ये जो आपके पास एग्जांपल्स हैं ये प्रीफिल्ड कार्ट्रिजेस हैं जिसमें एक आप उस कार्ट्रिज को एक बार ही यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको डिस्कार्ड करना होगा. मतलब उसमें प्रीफिल्ड डोज आएगी और उसमें इतनी डोज होती है कि आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो. सो दीज आर प्रीफिल्ड कार्ट्रिजेस. देन दूसरा है प्रीफिल्ड सिरिंजेस. आपके पास सिरिंजेस भी प्रीफिल्ड अवेलेबल हैं आजकल. वन एग्जाम्पल इज लोवेनॉक्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीफिल्ड कार्ट्रिजेस एंड प्रीफिल्ड सिरिंजेस. इंसुलिन सिरिंजेस जैसे हम पेशेंट को अगर इंसुलिन जा रहा है रेगुलरली, कभी कभी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना होता है ना. सो द पेशेंट कैन नॉट स्टे विदाउट इंसुलिन. डायबिटिक पेशेंट स्पेशली जब इंसुलिन अगर वो स्टार्ट करते थे तो देन दे हैव टू go with that only. So again and again when they use these needles for puncturing into their subcutaneous tissue and giving themselves insulin, so it is very painful and उससे क्या होता है साइकिक ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को. So उसको प्रिवेंट करने के लिए we can go for these needleless devices. ठीक है, तो आजकल ये सब अवेलेबल है, we can go for that. Now ये चीजें हैं. देन उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं. एक तो हमारे पास टैबलेट्स तो आपको पता है प्रीवियसली होता था कि टैबलेट्स को क्रश करके उनका सोल्यूशन बना करके उससे भी इंजेक्शन देते थे, बट अभी वो चीजें नहीं होती हैं. सो एक तो ये फॉर्म था टैबलेट्स. ओके, नेक्स्ट है क्यों नहीं होती है, क्योंकि टैबलेट्स को अगर आप क्रश करोगे तो वी आर नॉट श्योर कि वो स्टेराइल एनवायरमेंट में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो इट इज नॉट वेरी मच सेफ क्योंकि वो बॉडी के अंदर जा रहा है और बॉडी के अंदर सब कुछ स्टेराइल है. इट डजंट हैव एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस इज वाई द बॉडी इज कंसिडर्ड स्टेराइल. ओके, सो अगर आप टैबलेट क्रश करके इंजेक्शन दोगे तो इट इज नॉट स्टेराइल प्रोसीजर, सो वी डोंट यूज इट एनी मोर. नेक्स्ट है पाउडर. सो नाउ डेज बहुत सारे ड्रग्स जो है वो पाउडर फॉर्म में आते हैं. फिर उसमें आप जैसे आपने देखा होगा वर्ड में सेफ्ट्रियाक्सोन देखा होगा,
तो वहां पर हम वो पाउडर फॉर्म में होता है और उसके साथ वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन जिसको आप यूज करते हो उसको डिसॉल्व करने के लिए। यू कैन, अगर वाटर फॉर इंजेक्शन नहीं है तो यू कैन यूज द नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन फॉर मेकिंग दैट सोल्यूशन ऑफ द इंजेक्शन। सो स्टेराइल नॉर्मल सलाइन वाटर, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं। इट शुड बी स्टेराइल, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप यूज करें वो सब कुछ स्टेराइल हो। तो नॉर्मल सलाइन एंड देन वाटर फॉर इंजेक्शन ये यूज कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं। सो ये कॉमनली हम यूज करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन और नॉर्मल सलाइन। देन नाउ जो भी आप जब आप ये सोल्यूशन बना रहे हो तो आपको ये सब ध्यान में रखते हुए बनाना है कि आप जितना भी मतलब सॉल्यूशन जो आप यूज कर रहे हो, जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर रहे हो या नॉर्मल सलाइन यूज कर रहे हो डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन को, इस तरह से उतना यूज करना है जिससे कि पेशेंट को आप ओवरडोज भी ना दे दो और पेशेंट में डोज कम भी ना जाए। तो इस तरह से सोल्यूशन बनाना है। और जैसे कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल डोजेस, सो उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पर हमें देखना है कि कितना सोल्यूशन, कितने वाटर में हमें वो सोल्यूशन हम परफेक्टली बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड डोज फॉर द क्लाइंट। So we have to make sure that we prevent overdosage and underdosage. Then कभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड डोसेस भी नहीं यूज करना है, सोल्यूशन नहीं यूज करना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। सो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं कि आपने सोचा कि थोड़े अमाउंट में ही दे देंगे तो पेशेंट को पेनफुल नहीं होगा, बट उससे क्या हो सकता है, पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज करो उसको डाइल्यूट करने के लिए। देन मैक्सिमम थेरेप्यूटिक डोसेज भी पेशेंट को मिलनी चाहिए, ये नहीं कि आपने ज्यादा ही डाइल्यूट कर दिया तो जो एडिक्वेट डोज है वो नहीं मिली। Then to prevent the discomfort of large amount of solution injected. Now if you go on inject, अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट के लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल भी ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ दिस वाटर फॉर इंजेक्शन या नॉर्मल सलाइन यूज करके मेडिसिन आप डिसॉल्व कर रहे हो, सो उससे क्या हो सकता है कि आप ज्यादा अमाउंट दे रहे हो, है ना, जिसको आप कम अमाउंट ऑफ वाटर में भी मिक्स करके दे सकते थे। तो उससे क्या हो रहा है, पेशेंट का डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब ये है बेसिकली कि ओवरडोज भी नहीं करना, अंडरडोज भी नहीं करना, पेशेंट के लिए ज्यादा पेनफुल भी नहीं करना, पर वो कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा डाइल्यूट भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस तरह से ये सोल्यूशन बनाना है। हमेशा जब भी आप इंजेक्शन देने के लिए जा रहे हो तो इमीडिएटली जब आप देने जा रहे हो तभी आपको वो मेडिसिन प्रिपेयर करनी है। ये नहीं आप 1-2 घंटे पहले ही उसको प्रिपेयर करके रख दो या 1 दिन पहले से प्रिपेयर करके रख दो, ये नहीं करना है। देन जब भी आप मेडिसिन बना रहे हो तो अपने सामने उसको ओपन करना है। ओपन किया हुआ ऑलरेडी जो रखा है उसको नहीं यूज करना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अनस्टेराइल। देन जब पाउडर फॉर्म के जैसे आप इंजेक्शन यूज कर रहे हो तो उसमें क्या करना होता है, हमें नॉर्मल सलाइन और ये सब मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है। नाउ इट इज पाउडर फॉर्म, उसको थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से डिसॉल्व होने के लिए। सो कुछ इंजेक्शंस जो हैं जिनको आप शेक कर सकते हो, तो आप अपने हाथों के बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉटल, ओके, आप अपने हाथों के बीच में ऐसे रब करके उसको मिक्स कर सकते हो। देन यू कैन सी जब तक वो क्लियर ना हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा भी, जरा सा भी वो हार्डनेस या कुछ भी पाउडर फॉर्म नहीं रहना चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ओके, सो ऐसे शेक कर सकते हैं। समटाइम्स सम इंजेक्शंस आर नॉट टू बी शेकन, सो वी हैव टू कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, लेट इट डिसॉल्व बाय इटसेल्फ, थोड़ा वेट करें। Then when it get dissolved, then you inject that medication to the patient. अगर वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है, आपने जल्दी के चक्कर में उसको ऐसे ही मेडिसिन ले लिया और इंजेक्ट करने जा रहे हो, सो इट कैन बिकम अ ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। ओके, सो एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है उससे, ठीक है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए वी मेक श्योर दैट द मेडिसिन इज कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड, थॉरली डिसॉल्व होना चाहिए, कोई भी क्लम्प कुछ भी नहीं होना चाहिए। Now there are different types of containers for the injections. Now there are 2 types mainly, ampules and vials, ठीक है। ampules जो है वो दोनों ही obviously ग्लास के होते हैं। ampules जो है उनको आप ब्रेक करके वो ओपन आप यूज कर सकते हो। vials जो है उनके ऊपर एक कैप लगा होता है, उसको हटाओगे तो वहां पर रबर कैप होगा, रबर भी होगी लगी हुई, उसमें आप नीडल के साथ जब इंजेक्ट करोगे तब आप मेडिसिन को विड्रॉ कर सकते हो। सो आई विल टीच यू अबाउट दैट, किस तरह से आपको मेडिसिन विड्रॉ करना है। ओके, सो एम्प्यूल के कुछ पार्ट्स होते हैं, वाइल और वाइल के भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्यूल।
here this is an ampule. Okay, so when we use this ampule, it has two parts. The one is this stem. Okay, this is the stem part, and this up till here, this is the stem part, this part. The upper part is the stem part, and the lower part is called the base. Okay, and this part, this is the constriction area. Constriction area, where there is the place for filing and for breaking this ampule. So usually this area is marked on various types of ampules, on various ampules. वाइट कलर से या ब्लैक या ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर से यहाँ पर ऐसे लाइन होती है, जिसको देख सकते हो, यहीं से वो ब्रेक होगा एम्प्यूल. तो इसको आपको पकड़ के ऐसे ब्रेक करना होता है. ओके, सो दिस इज अ स्टेम पार्ट. दिस होल थिंग इज मेड अप ऑफ ग्लास. यहाँ पर जैसे लेबल है, तो पूरा जो है ये किससे बना होता है. फर्स्ट तो आपको ये जो एम्प्यूल है, ये जो आपका मार्क है कॉन्स्ट्रक्शन का, ये जो पूरा मतलब स्टेम और जो कॉन्स्ट्रक्शन का जो मार्क है, इसको पूरा क्लीन करना है स्पिरिट स्वैप से. उसके बाद ही आप इसको ब्रेक करोगे, जिससे कि आप एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करोगे. एसेप्टिक टेक्निक मीन्स इट डजंट हैव एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व. सो इसको स्टेराइल करने के लिए या इसको क्लीन करने के लिए स्पिरिट स्वैप यूज करके आप इसको क्लीन करोगे. उसके बाद ही इसको ब्रेक करोगे स्पिरिट स्वैप से. ठीक है, सो दैट यू हैव एसेप्टिक टेक्निक में. उसके बाद जैसे कि आपके पास एक गॉस पीस आपको मैंने दिखाया है कि कैसा होता है. ठीक है, जैसे बैंडेज होता है उसका छोटा पार्ट, तो उसको आप इस तरह से रखोगे. ठीक है, डायमंड शेप में अपनी फिंगर्स पर इस तरह से रखोगे. ठीक है, और यहीं पर आपको ये एम्प्यूल को, यहाँ पे गॉस पीस रखा और उसके ऊपर ये एम्प्यूल को रखोगे. ठीक है, और यह एम्प्यूल जो है इसके जस्ट इस पीछे में यहाँ पर ये आना चाहिए. ओके, सो किस तरह से आ जाएगा, लेट्स सी. कुछ इस तरह से आपके पास ये गॉस पीस आ जाएगा पीछे, और आपके पास ये एम्प्यूल हाथ में ही है. ठीक है, तो ये इस तरह से आपके हाथ में होगा, लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू ओवर हियर. फाइलर होता है, मतलब कुछ घिसने के लिए. ठीक है, घिसने के लिए एक फाइलर होगा. शार्प चीज हो सकती है, कुछ भी, जिसको जो यहाँ से शार्प होगा, इसको आप यहाँ पर ऐसे यू विल मूव इट लाइक दिस, जैसे कि नाइफ से घिसते हैं. ओके, लाइक दैट यू विल मूव इट, एंड देन ये जो गॉस पीस है, इससे पूरा इसको कवर करोगे दोनों साइड से, एंड देन यू ब्रेक इट. ओके, सो इजिली वो ब्रेक हो जाएगा. जब ये अगर ये मार्किंग ऑलरेडी है एम्प्यूल पर, तो यू डोंट हैव टू फाइल इट ऑल्सो. वो इजिली ब्रेकेबल होता है. एंड अगर नहीं है तो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, दोनों चीजें आप करो. ठीक है, सो बेटर है कि अगर आप फाइल करोगे तो इजिली वो ब्रेक हो जाता है. अब ये गॉस पीस से आप अगर आप यूज कर रहे हो तो उससे क्या क्या फायदे होंगे. सबसे पहले तो आपको कोई इंजरी नहीं होगी. ठीक है, दूसरी बात, ग्लास पीसेस जो है वो गॉस पीस में आ जाएंगे, मेडिसिन में नहीं जाएंगे, इधर उधर spread नहीं होंगे. So the glass pieces don't get spread all around. Then you don't get yourself injured. Your fingers are safe. Then medicine जो है उसके ऊपर आपका हाथ नहीं लगेगा, ये क्योंकि स्टेराइल है, तो कोई भी कंटामिनेशन मेडिसिन का नहीं होगा. नाउ जब आप ये ब्रेक करने जा रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ ये जो एरिया स्टेम पार्ट है, यहाँ पर कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन नहीं होना चाहिए. सो व्हाट यू डू, ये जो स्टेम पार्ट है, यहाँ पर आप टैप करोगे. ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर टैप करना है, ताकि मेडिसिन जो भी यहाँ पर अगर कलेक्टेड है वो नीचे आ जाए. ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज एन एम्प्यूल, हाउ यू ब्रेक दैट मेडिकेशन. अब यहाँ पर ये जब ब्रेक हो जाएगा तो ये ऐसे ओपन हो जाता है. सो हियर यू कैन सी, ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे ये ब्रेक हो गया. अब यहाँ पर आप सिरिंज और नीडल को यूज करके मेडिसिन को विड्रॉ कर सकते हो. जब आप मेडिसिन विड्रॉ कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका नीडल जो है वो बाहर में कहीं पर भी
टच ना हो. इट शुड गो डायरेक्टली इनटू द मेडिसिन, अदरवाइज वो अनस्टेराइल हो जाएगी. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो ये सिरिंज या नीडल है वो कहीं पर भी बाहर में टच ना करे. इट शुड डायरेक्टली गो इनटू द मेडिसिन एंड गेट द मेडिसिन विड्रॉल. सो दिस इज वन थिंग. सो ये सारी चीजें हैं. एक बार अगर आपने एम्प्यूल को ओपन कर लिया है तो उसमें से मेडिसिन को आपको पूरा ही यूज कर लेना है. और यू मेक श्योर कि आप अगर उसको बहुत टाइम के लिए ऐसे यूजलेसली नहीं रखना है, अदरवाइज इट बिकम्स कंटामिनेटेड. सो दिस इज अबाउट दिस एम्प्यूल. नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट वायल. सो हियर यू कैन सी दिस इज अ वायल. ये जो कैप है ये पूरा यहाँ पर लगा हुआ होता है, इसको आप निकाल सकते हो. तो क्या बचेगा यहाँ पर, आपके पास ये रबर वाला एरिया आ जाएगा और ये स्टील वाला एरिया होता है और ये पूरा ग्लास का एरिया और यहाँ पर ये लेबल है. तो आप जब ये वायल्स यूज कर रहे हो, ये जो वायल्स होते हैं यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक डोज के लिए नहीं बल्कि आप एक से ज्यादा डोज के लिए भी इसको यूज कर सकते हो. सो दीज वायल्स आर मल्टी डोज. ओके, so these vials are multi dose and here this is why यहाँ पर रबर स्टॉपेज होता है जिससे कि मेडिसिन कंटामिनेट ना हो. अगर आप एम्प्यूल यूज कर रहे हो तो वो सिंगल डोज होते हैं, ठीक है, तो उसको आप वन टाइम यूज करके उसको डिस्कार्ड करना है. अनदर थिंग, यहाँ पर आपको मेडिसिन लेने के लिए एयर लेनी होती है पहले सिरिंज में, तभी आप वो मेडिसिन को विड्रॉ कर पाओगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिरिंज में थोड़ी एयर लो, फिर उसको मेडिसिन ये वायल के अंदर पुश करोगे एयर को. ठीक है, एयर को पुश जब आप इसके अंदर कर दोगे तब आपके पास इजीली वो मेडिसिन सिरिंज में अपने आप आ जाएगी. ठीक है, प्रेशर के साथ अपने आप उतनी ही आ जाएगी. तो जितना मेडिसिन आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 ml मेडिसिन चाहिए सिरिंज के अंदर, तो सिरिंज के अंदर आप 2 ml तक की एयर लोगे. ठीक है, पुल करके एंड देन उसको आप इसके अंदर इंजेक्ट कर दोगे एयर को. ठीक है, एयर इंजेक्ट करने के बाद इसको अपसाइड डाउन करोगे, मतलब उल्टा करोगे नीडल के साथ, और फिर इजीली आप देख सकते हो अपने आप वो फिल हो रहा है और सिरिंज में 2 ml ही मेडिसिन आपके पास आ जाएगी. यहाँ पर आप देख सकते हो बुक के अंदर एक पिक्चर है, आई विल शो इट टू यू. सो हियर यू कैन सी किस तरह से एम्प्यूल को ब्रेक कर रहे हैं. टैपिंग द एम्प्यूल मूव्स फ्लूइड डाउन द नेक. सो यहाँ से ये जो आपके पास स्टेम है एम्प्यूल का, वहां से मेडिसिन जो है नीचे आ जाती है टैप करने से. देखिए किस तरह से गॉस पीस को यूज करके ब्रेक किया एम्प्यूल एंड देन ब्रेक कर दिया यहाँ पर. देन मेडिसिन इस तरह से विड्रॉ करना है. You can keep it flat down also and you can keep this ampule upside down also, क्योंकि वहां पर उसमें वैक्यूम बना होता है तो मेडिसिन गिरेगी नहीं, बट यूजुअली हम इस तरह से मेडिसिन को विड्रॉ करते हैं. अगर आप एम्प्यूल यूज कर रहे हैं तो लेट्स सी कि किस तरह से लेना है. सो आपने पहले ही एयर इस तरह से आप एयर को एंटर कराओगे और इस तरह से आप विड्रॉ करोगे मेडिसिन को. ओके, लाइक दिस यू हैव टू विड्रॉ द मेडिकेशन. तो यहाँ पर देखिए एम्प्यूल को 2 तरह से यूज किया है. ऐसे भी आप मेडिसिन विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये दोनों ही एम्प्यूल्स हैं. हियर वी हैव दिस वायल. ठीक है, तो वायल में इससे इस तरह से मेडिसिन विड्रॉ करना है. When we meet in the college then we can better understand because there we can see how it is done. तो ये जो एम्प्यूल्स है यहाँ पर तो कोई रबर या कुछ नहीं है, पर ये जो वायल्स है यहाँ पर रबर प्रोटेक्शन होती है. ठीक है, तो जैसे ये कैप है वहां पर रबर लगी होती है जिससे कि मेडिसिन प्रोटेक्टेड रहती है. इसलिए हमें एयर को पहले पुश कराना होता है उस एम्प्यूल वायल के अंदर, तभी हम मेडिसिन विड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अगर आपको 2 वायल से मेडिसिन लेनी है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास दोनों ही वायल से अगर मेडिसिन लेनी है तो आप पहले दोनों ही वायल के अंदर एयर इंजेक्ट कर दोगे, तब एक एक करके मेडिसिन को विड्रॉ करोगे. पर जब आप दूसरे वायल से मेडिसिन विड्रॉ कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो पहली वाली मेडिसिन है वो वायल के अंदर, दूसरे वायल के अंदर ना इंजेक्ट हो. ठीक है, सो जिससे कि वो कंटामिनेट ना हो. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मल्टीपल डोज वाला है और एक वायल में से आपको एक ही डोज लेनी है, अब इस तरह के आपके पास वायल्स है, तब आपको मेडिसिन विड्रॉ अगर करनी है, सो व्हाट यू कैन डू, आप पहले जो मल्टीपल डोज वाला वायल है जहां से आपको कई बार लेनी है, तो आप वहां से पहले मेडिसिन लोगे, बाद में आप सिंगल डोज वाले जो वायल है वहां से मेडिसिन लोगे. एयर आप दोनों के अंदर इंजेक्ट कर दो. ओके, फिर आपको डोज पहले कहां से लेनी है, मल्टीपल डोज वायल से, देन यू गो फॉर द सिंगल डोज वायल. ठीक है,
तो वहां से आपको बाद में मेडिसिन लेनी है, जिससे व्हाट विल हैपन विद दैट, इट विल प्रिवेंट फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ द मल्टीपल डोज वायल. ठीक है, तो मल्टीपल डोज वाला जो वायल है वो कंटेमिनेट नहीं होगा, आप बाद में भी उसको यूज कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू विड्रॉ द मेडिसिन फ्रॉम एम्प्यूल एंड वायल. ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड अदर थिंग्स. प्रिंसिपल्स हैं, देन वी हैव नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रिंग द इंजेक्शंस, देन हाउ टू प्रिपेयर द क्लाइंट, देन IM अगर देना है तो कहाँ पर देना है, साइट्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इंट्राडर्मल देना है तो कहाँ पर दे सकते हैं, कैसे देना है, सबक्यूटेनियस कैसे देना है, देन द प्रोसीजर ऑफ गिविंग दिस इंजेक्शंस. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. सो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड दिस इज अबाउट दिस, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर नहीं समझ आया है, कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज डू आस्क मी. थैंक यू.